evidence which support the particle nature of matter. और इसके बाद मैंने कहा था there are different evidence which support the particle nature of matter. Now depending upon the intermolecular force of attraction and kinetic energy, matter is divided into three main states. Number first is solid, number second is liquid, and number third is gas. Today we will discuss about solid and properties of solid. Now the first point is what is solid. आप लोग जानते हो on the base of intermolecular force of attraction, when intermolecular force of attraction is greater than kinetic energy or thermal energy, then at that time the state of the substance is always solid. Then at that time state of the solid is always solid. Before we discuss the properties of solids, you must know the two important terms. Two terms we use in this case. Number first is rigidity and number second is fluidity. You must know the two terms. Number first is rigid and number second is fluid. मान लो आपसे किसी ने पूछा what is the difference between rigid and fluid. Rigid means unbending, the substance which cannot be bent. Unbending or uninflexible. Unbending or inflexible is said to be rigid. Rigid का मतलब क्या है कि when you apply external force and the body does not bend. मान लो मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, बॉडी डज नॉट बेंड. एक्सेस में एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए नॉर्मल केस के अंदर. इफ देयर इज इनफ्लेक्सिबल और अनबेंडिंग टेक्स प्लेस, इसी का नाम पड़ा है रिजिड. सच प्रॉपर्टी इज नोन एज रिजिडिटी. इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या पड़ा है? रिजिडिटी. और याद रखना कि जो सॉलिड्स होते हैं, most of the solids, about 90% of solids, they are rigid. They are rigid. Rigid means they are hard, they are inflexible. Same is the case. Number second is fluid. Fluid means any substance which can be flow. Any substance which can be flow and which require or needs vessel to keep it. Which need vessel to keep it is known as fluid. Fluid means any substance which can flow. मान लो कोई भी सबस्टेंस जिसके पास प्रॉपर्टी होती है फ्लो की, दैट सबस्टेंस इज कॉल्ड फ्लूइड. दैट सबस्टेंस इज कॉल्ड फ्लूइड. आप लोग जानते हो कि देयर आर टू मेन स्टेट्स ऑफ मैटर व्हिच पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी. नंबर फर्स्ट इज गैस एंड नंबर सेकंड इज लिक्विड. और गैस और लिक्विड जो है, याद रखना, गैस एंड लिक्विड्स आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लूइड्स. गैस एंड लिक्विड्स आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स. व्हाई दे आर कॉल्ड fluids? Because they have a tendency to flow. And one state that possesses maximum fluidity, that state is called gaseous state. और इसलिए आप लोग याद रखो कि फ्लूइड्स जो होते हैं ना, गैसेस एंड लिक्विड्स आर कॉल्ड फ्लूइड्स. लेकिन जो फ्लूइडिटी होती है, फ्लो की जो टेंडेंसी होती है, दैट इज मैक्सिमम इन केस ऑफ गैस, और इसके बाद लिक्विड, और इसके बाद सॉलिड. Now when we discuss about the properties of solids are rigid, and liquid and gases are not rigid, they act as fluids. They are fluids. So write down now, what are the properties of solids? So number first property is solids have definite shape and definite volume. Number first property of solids have one of the important property. That property is solids have definite shape. Solids have definite shape and definite volume, whereas liquids have definite volume but does not have definite shape. The first property is solids have definite shape and definite boundary or definite volume. अगर हम solid की बात करते हैं
तो आप लोग जानते हो कि सॉलिड की जो पहली प्रॉपर्टी होती है, दैट प्रॉपर्टी इज दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अब सवाल है कि सर ये जो शेप होती है और वॉल्यूम, what are the factors on which it depends? Which factor is responsible for definite shape? Which factor is responsible for providing the definite shape for solids and definite volume for liquids? और याद रखना वो जो factor है, that factor is intermolecular force of attraction। और आप लोग जानते हो कि in case of solids intermolecular force of attraction is maximum। intermolecular force of attraction है क्या? अरे मैक्सिमम है ना। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, एज अ रिजल्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स keep the particle close to each other, due to which solids have definite shape and definite volume because of intermolecular force of attraction। बताओ सॉलिड के केस में होगा क्या? particles are close to each other, तो particles are close to each other and this closeness is because of intermolecular force of attraction। whenever the substances have shape, मान लो किसी ने पूछा व्हाट इज शेप, व्हाट डज डेफिनेट शेप मीन्स? डेफिनेट शेप मीन्स विच हैव फिक्स्ड बाउंड्री, which have fixed boundary। when particles have fixed boundary that represent shape, that represent shape। तो shape means when the particles have definite boundary, जब एक डेफिनेट बाउंड्री होगी और फिक्स्ड बाउंड्री, इसीलिए उसका नाम पड़ा है डेफिनेट शेप। और सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है? सॉलिड के पास होती है एक डेफिनेट शेप। सर व्हाई सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप? बिकॉज दे हैव डेफिनेट बाउंड्री। अब सवाल है कि सर ये जो बाउंड्री है, what are the factor on this boundary depends, that is the arrangement of particles and intermolecular force of attraction। मान लो हम सॉलिड की बात करते हैं। In case of solids, particles are very close to each other। when particles are very close to each other, और आप लोग जानते हो कि सॉलिड के केस में देखा गया particle cannot leave its position, particle cannot leave its, particle only vibrate, particle only vibrate। मान लो if we take the example of this particle show only vibration, they show only vibration। और आप ये भी जानते हो कि मान लो अगर एक सबस्टेंस के पास एक वाइब्रेशन होती है, टू एंड फ्रो मोशन, इज पार्टिकल लीव इट्स पोजीशन? क्या पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करता है? इसका मतलब है कि जो उसकी पोजीशन होती है, पोजीशन रिमेन्स फिक्स्ड, पोजीशन रिमेन्स फिक्स्ड। व्हेन पोजीशन रिमेन्स फिक्स्ड, इसका मतलब ये है कि यहां पे एक डेफिनेट बाउंड्री है। मान लो कि ये पार्टिकल वाइब्रेट हुआ, टू एंड फ्रो मोशन, युकुंति गोइम, अगर ये दोनों साइड मूव गो, मगर ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो स्ट्रांग आसान कि it keep the particle on its own position, due to which these solids have definite boundary। whenever the object have definite boundary, that represent shape, बताओ सॉलिड के केस में शेप क्यों डेफिनेट होती है? because of intermolecular force of attraction। तो because of intermolecular force of attraction, strong intermolecular force of attraction, particle does not leave their position, when particle does not leave their position, due to which they achieve definite shape and definite volume। तो ओवरऑल आपको याद रखना है कि सॉलिड के केस में एक डेफिनेट शेप भी होती है एंड ऑल्सो डेफिनेट वॉल्यूम, बट इन केस ऑफ लिक्विड दे डू नॉट हैव एनी शेप। That is why they take the shape of the vessel in which they are placed। आगे डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा why liquid does not have definite shape। Next property, most of the solids are hard। Now second important property, that is hardness। Before we discuss hardness, next important property of solid is that property is elasticity or elastic solids। most of the solids are hard but except few solids which are soft, and there are few solids which possess the property, that property is called elasticity, और इन solids का नाम पड़ा है elastic solids। अब आगे देखो, मान लो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th के अंदर ही force and laws of motion। force means when we apply the body
when we apply the force is an agent, we change the position of body. We change the position of body. And in the same way, if a body is at rest, if we apply force on it, the body will come into motion. अब सवाल है कि there is one specific type of force. There is one specific type of force which does not change the state of rest. पूरा समझना. Which does not change the state of rest, or which does not change the state of uniform motion. मान लो हमारे पास एक बॉडी है एंड बॉडी इज एट रेस्ट एंड बॉडी आर ऑल्सो इन यूनिफॉर्म मोशन. मतलब बॉडी के पास क्या है? यूनिफॉर्म मोशन. इफ वी अप्लाई द फोर्स ऑन ए बॉडी, इफ वी अप्लाई द फोर्स ऑन ए बॉडी, पूरा समझना. इफ वी अप्लाई द फोर्स ऑन ए बॉडी and the body does not change its state of rest or uniform motion, and the body does not change its state of rest or uniform motion, such type of forces are known as deforming force. Such type of force are known as deforming. So what is deforming force? Very good. What is deforming force? It is that type of force which does not change the state of rest or uniform motion, but change the state, but change the shape of body. मान लो आप लोगों ने बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी, इफ बॉडी इज इन रेस्ट और बॉडी इज इन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, it does not change its rest. It does not change the state of rest or uniform motion. But once you apply force, जो ही आपने फोर्स अप्लाई किया, shape of the body change. मान लो ये मेरे पास एक मार्कर है. इमेजिन करो, फिजिक्स के अंदर में इलास्टिक सॉलिड किसको बोलते हैं? मान लो ये हमारे पास मार्कर है ना. इफ दिस इज मार्कर, इफ वी अप्लाई फोर्स, मान लो मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, बताओ क्या उसकी स्टेट चेंज हुई? क्या इसकी स्टेट चेंज हुई? अभी भी ये रेस्ट के अंदर ही है ना. एंड इफ दिस पार्टिकल इज एट रेस्ट, if we apply more force on it, this change its shape, this will bend, it will break down. Once you apply the force, मान लो ये हमारे पास एक solid है and solid is in state of rest, but once you apply the force, it bends, it bend. इसका मतलब है कि जो मैंने external force apply किया, क्या external force apply करने से क्या body की state change हुई? If state of body does not change, but only shape change, such type of force are called as deforming force. Depending upon the nature of deforming force, the nature of body, the bodies are of two main types. The bodies are of two main types. Number first is elastic body or elastic solid, and number second is plastic body or plastic solids. There are two main types of body. Number first is elastic body and number second is plastic. पता इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी में क्या डिफरेंस है? यू कैन राइट डाउन. ए बॉडी इज सेड टू बी इलास्टिक. ए बॉडी is said to be elastic. A body is said to be elastic. A body is said to be elastic when it regain its shape and size. When it regain its shape and size. A body is said to be elastic when it regain its shape and size, when deforming force is removed. When deforming force is removed, the body is said to be elastic. The body is said to be elastic. Elastic. What does elastic mean? A body is said to be elastic when it regain its shape and size. When body regain its shape and size. When deforming force is removed. बताओ इसका नाम क्या पड़ा? Elastic. Example मैं बता रहा हूँ. Please concentrate now. If we take the example of rubber.
व्हेन यू अप्लाई द फोर्स ऑन रबर मीन डिफॉर्मिंग फोर्स, और इसके बाद मुझे बताओ व्हेन यू रिमूव रिफॉर्मिंग फोर्स, बताओ प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज बट अप टू लिमिट, और इस लिमिट का नाम पड़ा है इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। व्हेन बॉडी क्रॉस लिमिट, याद रखना है, बॉडी इज सेड टू बी इलास्टिक व्हेन इट रिगेन इट्स शेप एंड साइज व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव्ड अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट। एक लिमिट है, बताओ जो ही बॉडी ने इस लिमिट को क्रॉस किया, द बॉडी डज नॉट बिकम नाउ इलास्टिक, द बॉडी कन्वर्ट इनटू प्लास्टिक। बताओ बॉडी किस में कन्वर्ट होती है बाद में? एक लिमिट है बॉडी के अंदर। मान लो आपने रबर पर ज्यादा ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, व्हेन यू अप्लाई मोर एक्सटर्नल फोर्स इट विल ब्रेक डाउन, इट विल ब्रेक। इसका मतलब है कि बॉडी के पास प्रॉपर्टी थी इलास्टिसिटी की, लेकिन इसके बाद यही बॉडी किस में कन्वर्ट हुई? प्लास्टिक में। इसके बाद नेक्स्ट बॉडी बताओ प्लास्टिक बॉडी है क्या? व्हाट इज प्लास्टिक? अ बॉडी इज सेड टू बी प्लास्टिक व्हेन इट डज नॉट रिगेन इट्स शेप एंड साइज व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड इज नोन एज प्लास्टिक, इज नोन एज प्लास्टिक। बताओ बॉडी के कितने टाइप्स है? दो। मान लो आपसे पूछा गया सॉलिड के कितने टाइप्स है, आप बोल सकते हैं टू टाइप्स, इलास्टिक सॉलिड एंड प्लास्टिक सॉलिड। जानते हो ना रबर सॉलिड है या लिक्विड या गैस है? सॉलिड है, लेकिन रबर के पास एक प्रॉपर्टी होती है, इट रिगेन इट्स शेप, इसलिए रबर को हम बोलते हैं इलास्टिक सॉलिड, इलास्टिक सॉलिड। लेकिन पैराफिन वैक्स है, पैराफिन वैक्स, वंस यू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इट डज नॉट रिगेन टू इट्स ओरिजिनल शेप। इसका मतलब पैराफिन वैक्स क्या है? प्लास्टिक, पैराफिन वैक्स इज प्लास्टिक। अब आगे देखो, मान लो यहां से आपको पता चला कि देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ बॉडी, वन इज इलास्टिक बॉडी और नंबर सेकंड जो बॉडी का टाइप है इसका नाम पड़ा है प्लास्टिक बॉडी। और प्लास्टिक बॉडी और इलास्टिक बॉडी आप जानते हो। इसके बाद जो भी इलास्टिक बॉडी होती है, इलास्टिक बॉडी पोजेस एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी का नाम पड़ा है इलास्टिसिटी। क्या नाम पड़ा है? तो यू कैन राइट दिस, इलास्टिक बॉडी पोजेस एन प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। बताओ इस प्रॉपर्टी का नाम क्या पड़ा? इलास्टिसिटी। एक प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिसिटी और इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है सर? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, राइट डाउन, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलास्टिसिटी मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और बॉडी भी लिख सकते हो, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच it regain, the property of matter due to which it regain its original shape and size, its original shape and size when deforming force have been removed, when deforming force have been removed अप टू इलास्टिक लिमिट। जानते हो अप टू इलास्टिक लिमिट। बताओ इसी का नाम क्या पड़ा है? शाबाश, इसका नाम पड़ा है इलास्टिसिटी। एक होती है बॉडी इलास्टिक, मुझे पता है इलास्टिक बॉडी, द बॉडी विच रिगेन इट शेप व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स रिमूव। लेकिन वो प्रॉपर्टी मैटर की, इलास्टिसिटी मैटर की प्रॉपर्टी होती है। मान लो मैंने आप लोगों को कहा कि 9th क्लास के अंदर एक एबिलिटी होती है यमचे लर्ड चोर करन, अमल गो मन ये प्रॉपर्टी आसन यमचे इलास्टिक, लेकिन सिफत यमन मद आसन यमसे ये लर्ड चोर करन। बताओ इसी का नाम क्या पड़ा? इलास्टिसिटी। इलास्टिक बॉडी का मतलब है कि व्हेन बॉडी रिगेन टू इट्स ओरिजिनल शेप, लेकिन वो एबिलिटी शायद आप लोग जानते हो, एक दफा स्टूडेंट को पूछा गया कि इस साल, नाउ सी, फादर और सन के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हुआ और फादर ने कहा सन से, बेटा इस साल मैट्रिक में 95% लाना, 95% लाना। और उसने जवाब दिया कि इस साल में 95 नहीं, इस साल में 99% लाऊंगा। और बाप ने बेटे से कहा बेवकूफ, बाप से मजाक करता है, और उसने जवाब दिया मजाक तो पहले आपने शुरू किया है, मेरी कैपेसिटी है 33% की और आप बोलते हो 95%, और इसलिए मैं 99% लाऊंगा। टीचर विच हियर किताब वाचन सारे वापस और 5 सिर्फ 12 कर। अब आगे देखो,
अब आगे देखो इलास्टिसिटी है ना, अब देखो इलास्टिसिटी का मतलब है द मैटर ड्यू टू व्हिच इट रिगेन इट इज ओरिजिनल शेप, वो प्रॉपर्टी जो मैटर के अंदर होती है प्रॉपर्टी। और इलास्टिसिटी और इलास्टिक बॉडी में क्या फर्क है? अरे इलास्टिक बॉडी का मतलब है कि विच रिगेन इट इज ओरिजिनल शेप, लेकिन इलास्टिसिटी का मतलब है वो प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास 9th which spoil the whole knowledge का, that is called elasticity, that is called। और इनके पास ये प्रॉपर्टी है और इसलिए उनका नाम पड़ा ये इलास्टिक सॉलिड है, इनका इसका नाम क्या पड़ा? इसलिए डॉन के साथ मत खेला करो कि डॉन इतने खतरनाक है ये किसी चीज को भी खत्म कर सकते हैं। अब आगे देखो, अब समझ आया कि इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में क्या फर्क है? इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। अब इसके बाद मैंने कहा इलास्टिसिटी के बाद नेक्स्ट टर्म है प्लास्टिसिटी। बताओ प्लास्टिक की प्रॉपर्टी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच इट डज नॉट रिगेन इट इज ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव। इसका नाम पड़ा है प्लास्टिक। क्या नाम पड़ा है? अब पता चला सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या? इलास्टिक, सॉलिड और कंसेप्ट समझो। मुझे बताओ स्टील ज्यादा इलास्टिक है या रबर? और याद रखो मैक्सिमम इलास्टिसिटी जो होती है वो स्टील के पास होती है। स्टील हैव मैक्सिमम इलास्टिसिटी देन रबर। आगे पढ़ाऊंगा सिट्रस और सिट्रेन। इट सीम्स टू बी एस, आस्था नहीं बास्ता है। It seems to be yes, the thing seems to be, but it is not real. It seems to be yes, rubber should be more elastic than steel, but steel is more elastic. You can write this thing. आगे डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा। Steel is more elastic than rubber. Steel is more elastic than rubber. आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा सिट्रस और सिट्रेन। इसके बाद आगे देखो, अब यहां से पता चला कि बॉडी के कितने टाइप्स होते हैं? 2। नंबर फर्स्ट इज इलास्टिक और नंबर सेकंड इज प्लास्टिक। और इसके बाद इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। याद रखना द बॉडी प्लास्टिक मीन डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। और इसके बाद आगे देखो, जो भी बॉडी होती है ना इलास्टिक बॉडीज ओबे लॉ, दैट लॉ इज कॉल्ड हुक्स लॉ। इसका नाम क्या पड़ा? हुक्स लॉ। तो राइट डाउन नेक्स्ट नाउ, elastic bodies obey law, that law is called Hooke's law, although कि rubber does not obey, वो तो exception है, आगे बताऊंगा। Hooke's law, जो elastic body होती है ना, they follow law, that law is called Hooke's law. According to Hooke's law, you can write down a statement. According to Hooke's law, the extension produce, according to Hooke's law, extension produce in a wire. According to Hooke's law, extension produce in a wire is directly proportional to load attached to it. Is directly proportional to load attached to it. According to Hooke's law, extension produce in a wire. वायर के अंदर कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई is directly proportional to load attached to it. इसका मतलब क्या है? मान लो if we take the example of rigid support or hard support, and if wire is attached to it and one side of the wire we attach load, one side of the wire we attach load, जानते हो? Anything which have mass. इसके बाद once you apply external force, wire will extend. wire में क्या होगी? Action spring load. If we apply load on body, you will observe that कि extension produce. According to Hooke's law, ये जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है ना वायर में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। वो किस पे डिपेंड करती है? लोड पर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। तो ये जो एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अरे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? लेकिन साइंटिस्ट ने बेटर टर्म यूज की
फॉर एक्सटेंशन और लोड के लिए दे यूज द टर्म सिट्रस एंड सिट्रेन, सिट्रस एंड सिट्रेन। तो अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड लॉ ऑफ हुक्स लॉ, according to modified Huckus law, citrus is directly proportional to citrine. Citrus is directly proportional to citrine. एक्सटेंशन को किससे कंपेयर किया? अरे किससे कंपेयर किया? सिट्रस, आगे बढ़ाऊंगा सिट्रस। और जो ये लोड है, लोड को किससे कंपेयर किया? स्ट्रेन से। तो मॉडिफाइड लॉ ऑफ हुक्स लॉ स्टेट्स दैट एक्सटेंशन इज डायरेक्टली proportional to citrine। तो हमेशा याद रखना, citrus is directly proportional to citrine। citrus किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? citrine। अब आगे देखो, citrus is directly proportional to citrine। now citrus is equal to, proportionality should be equal, और whenever proportionality convert into equal we always use constant। और बताओ किसके बराबर है? it is equal to constant into citrine, and that can also be represented citrus divided by citrine is equal to constant, and this constant is called Young's modulus of elasticity। क्या नाम पढ़ा है? constant का नाम क्या पढ़ा है? Young's modulus of elasticity। आगे कल डिटेल के अंदर पढ़ूंगा Young's modulus of elasticity है क्या, और elasticity सिट्रस और सिट्रेन में क्या डिफरेंस है।